A very warm welcome to all of you in our YouTube channel APC Academy. Myself Aditya Ranaut here to tell you something about cell cycle. First of all, before starting the cell cycle, we have a knowledge about the cell. What is cell? Cell is the basic structural and functional unit of every living organism in this world. So it is a structural and functional unit. What does it mean? Structural mean that each living organism and function, every function is done inside a cell. For example, a building, if we take an example of a building, जैसे कि एक बिल्डिंग होती है, वो क्या ईंटों से मिलके बनी होती है, ब्रिक से मिलके बनी होती है, तो एक ब्रिक उस बिल्डिंग का क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है. वैसे ही सेल भी क्या है, ह्यूमन बॉडी का या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्ट्रक्चरल यूनिट है. नाउ अबाउट द सेल साइकिल. सेल साइकिल एक्चुअली होती क्या है? सेल साइकिल is the sum of all the events which occurs during the cell growth and cell division. That means all the events during cell growth and cell division. जो भी इवेंट्स इन दो फेजेस के दौरान होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल. अब हम बात करेंगे सेल ग्रोथ की कि सेल ग्रोथ होती क्या है. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ सेल. इट एनलार्जेस इन इट्स साइज ड्यू टू द अकोमुलेशन ऑफ द वेरियस ऑर्गेनेल्स एंड वेरियस प्रोटीन, डीएनए, आरएनए. इट गेट एनलार्ज्ड एंड देन डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स. This phase is called as growth phase and this phase is called as division phase. And all the activities, all the events which happened during these two events, that is cell growth and cell division, are called as cell cycle. Okay, now cell cycle is divided into two different phases. One is called as interphase and second one is called as mitotic phase, or it is also called as M phase. First of all, हम क्या करेंगे? इंटरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे. इंटरफेस एक्चुअली होता क्या है? एज द नेम इंडिकेट, इंटर मीन्स बिटवीन एंड फेज मीन पीरियड और ड्यूरेशन. ये क्या होता है? किसी पीरियड के बीच का एक समय होता है. तो किन के बीच का समय होता है? बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव सेल डिवीजन. जब कोई सेल डिवाइड कर रहा होता है तो उनके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या कहते हैं? इंटरफेज. इसको हम ऐसे समझते हैं. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ सेल. It divides into two cells, two daughter cells. Then these two daughter cells act as a parent cell and further divides into two other daughter cells. And here it is a first division. ये क्या है? हमारा पहला डिवीजन है, पहला सेल डिवीजन है. और ये क्या है? हमारा सेकंड सेल डिवीजन है. तो जो टाइम दो कंसेक्यूटिव डिवीजन के बीच का होता है उसको क्या कहते हैं? इंटरफेस. सो इसमें इंटरफेस में एक्चुअली हो क्या रहा है? इसमें कोई डिवीजन नहीं हो रहा है. इसमें जो सेल है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है फॉर द फर्दर डिवीजन. और डिवीजन में क्या होना है? जो पेरेंट सेल में जेनेटिक मटेरियल है या साइटोप्लाज्म है वो इक्वली ट्रांसपोर्ट होना है नेक्स्ट डॉटर सेल्स में. तो इंटरफेज में एक तो इंटरफेज को क्या कहते हैं? प्रेपरेटरी फेज. और ये क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो डॉटर सेल होता है प्रिपेयर होता है फर्दर डिवीजन के लिए. वो कैसे प्रिपेयर होता है? बाय डुप्लीकेटिंग इट्स डीएनए मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल और वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स. Okay, and second name, it is also
called as resting phase because it appears to be in rest, but in actually what happens, it is not a resting phase because it is highly metabolically active. Why it is metabolically active? Because all the synthesis of DNA, RNA, proteins are occur in this phase. That means synthesis of DNA, RNA and various proteins are happened in this phase. So it is called as resting phase, but it is metabolically so much active that we can't say it is a resting phase. After that, the interphase is divided into three phases on the basis of synthesis of material in each phase. One is G1 phase, second one is S phase, third one is G2 phase. Okay, G1 phase is also called as first growth phase. S phase is called as synthesis phase. G2 is called as second growth phase. Okay, now we are going to understand all three of these phases with the help of a table. Now let's draw a table. At the extreme left, we take different phase. In the middle, we take the main events which occur in different phase, and in extreme right, we take the duration of each phase. First of all, G1 phase. The main events which occur in G1 phase are pooling of amino acids. Pooling of amino acid. That means amino acids gets accumulated in this phase for the formation of what? Proteins. Because amino acids are the building block of a protein. Also, there is a pooling of nucleotides. Nucleotides are also gets accumulated in this phase in order to form DNA or RNA. Also, there is a formation of ATP, which is an energy carrying molecule and called as adenosine triphosphate. The G1 phase occurs for about 6.3 hours. Now, the second phase is S phase, called as synthesis phase. In this phase, अब आपने ये देखा होगा कि जो G1 फेज है उसमें क्या हो रहा है, अमाइनो एसिड की पुलिंग हो रही है न्यूक्लियोटाइड्स की और एटीपी बन रहे हैं, बट जो डीएनए का कंटेंट है वो क्या है, वो इक्वल रह रहा है, उसमें क्या है, डुप्लीकेशन नहीं हो रही, उसमें एनहांसमेंट नहीं हो रही. बट इन एस विच इज कॉल्ड एज सिंथेसिस फेज, इसमें क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स. इसमें क्या होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है और जो डीएनए का कंटेंट है वो क्या होता है, डबल हो जाता है. आल्सो is a formation of ATP which is called as adenosine triphosphate, energy carrying molecule, and also the formation of RNA and various proteins. And this phase occurs about 7 hours. Now the third phase is G2 phase. In G2 phase, there is a formation of spindle protein. There is a formation of what? Spindle proteins, ATPs, and various cell organelles. And this phase continues for 2 hours. Okay, these are the 3 phases which occurs during
interphase. Okay, after interphase there is a which is called as mitotic phase, and mitotic phase is further of three types. That means a cell can divide itself by three different means. और वो तरीके सेल के डिवीजन के क्या क्या हैं, वो है नंबर 1 ए माइटोसिस, नंबर 2 माइटोसिस, नंबर 3 meiosis. Okay, now start with the amitosis. Amitosis, as the name indicate, ये क्या है, ये एक डायरेक्ट डिवीजन है. इट इज ए डायरेक्ट डिवीजन जिसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल है वो क्या करता है, डिवाइड करता है. ऑब्वियसली डिवाइड करेगा किसमें, डॉटर सेल में. बट जो जेनेटिक मटेरियल इसमें है वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होगा डॉटर सेल के. दैट मीन्स जो इसमें जो डिवीजन होगा वो कैसा डिवीजन होगा, अनइक्वल डिवीजन होगा. और अगर हम बात करें माइटोसिस की, माइटोसिस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर, इफ द क्रोमोसोम नंबर, इफ द सेल इज हैप्लॉइड, डॉटर सेल आल्सो बी. दैट मीन्स द क्रोमोसोमल नंबर, the chromosome number is retained as it is in parent cell. So it is also called as equational division. Okay. Now the third one is meiosis. Meiosis में क्या होता है, it is also called as reductional division. As the name indicate, इसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो क्या होता है, हाफ हो जाता है. डॉटर सेल में जाके क्या होता है, हाफ हो जाता है. डेट मीन्स अगर पेरेंट सेल अगर डिप्लॉयड है तो जो डॉटर सेल होगा वो क्या होगा, हैप्लॉयड होगा. जो क्रोमोसोम नंबर है वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, हाफ होगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन. नाउ अबाउट द एग्जांपल ऑफ एमाइटोसिस. जो एमाइटोसिस होती है वो कहां कहां में देखने को मिलती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इन सम बैक्टीरिया, yeast cell, in some bacteria, yeast cell, cardiac cell of human beings, and meganucleus of पैरामीशियम. इन जगहों में हमें दैट इज अनइक्वल डिवीजन ऑफ पेरेंट. एंड माइटोसिस की जब हम बात करते हैं, माइटोसिस हमें देखने को मिलती है हमारे सोमैटिक सेल्स में. हमारी जो बॉडी है वो दो टाइप के सेल से बनी होती है. एक सोमैटिक सेल्स होते हैं, एक जर्म सेल होते हैं. सोमैटिक सेल को तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे जर्म सेल होते हैं. जर्म सेल are helpful for the formation of the gametes, and all other cells except germ cell are called as somatic cells. जितने भी somatic cells हैं सब में माइटोसिस होती है. and in germ cell also mitosis takes place, but in a specific phase of gametogenesis, which is multiplicative phase. जो मल्टीप्लिकेटिव फेज होता है गैमेटोजेनेसिस का, उसमें हमें क्या देखने को मिलती है, माइटोसिस देखने को मिलती है. एंड व्हाट अबाउट द मियोसिस. मियोसिस का जब हम एग्जांपल लेते हैं, दैट इज क्लियर फ्रॉम द जर्म सेल. जर्म सेल में क्या होता है, जो हमारे डॉटर सेल है उनमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ होता है एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल, and it is the example, germ cells are the example of the meiosis. Now we discuss mitosis in detail.
ओके, नाउ माइटोसिस। फर्स्ट ऑफ माइटोसिस जो स्टडी की थी वो सबसे पहले स्टडी की गई थी प्लांट सेल। प्लांट सेल में स्टडी सबसे पहले क्या किया गया था, माइटोसिस को प्लांट सेल में स्टडी किया गया था। और ये स्टडी किसने किया था, ये स्टडी किया था एक जर्मन के बायोलॉजिस्ट थे, जर्मन बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था स्टार्सबर्गर। इन्होंने 1875 में फर्स्ट टाइम माइटोसिस को स्टडी किया था प्लांट सेल में। और इसके बाद क्या हुआ, एक जर्मन बायोलॉजिस्ट और आए जिनका नाम था फ्लेमिंग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनिमल सेल में माइटोसिस को स्टडी किया इन 1879 एंड दिस टर्म माइटोसिस टर्म इज गिवन बाय फ्लेमिंग इन 1882. It is about the history of the mitosis. Now we start mitosis. Mitosis is divided into two parts. One is karyokinesis. Other one is cytokinesis. As the name indicates, karyo means nucleus. There is a division in this process. There is a division of nucleus, and in cytokinesis there is a division of what? Cytoplasm. इसमें क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है, और जो साइटोकाइनेसिस होती है उसमें क्या होता है, जो हमारा साइटोप्लाज्म है सेल का वो डिवाइड होता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, कैरियोकाइनेसिस को। वी आर गोइंग टू डिस्कस कैरियोकाइनेसिस इन डिटेल। कैरियोकाइनेसिस इज कंप्राइज्ड ऑफ four different parts which are prophase, उसमें नंबर 1 प्रोफेज, नंबर 2 मेटाफेज, नंबर 3 एनाफेज एंड नंबर 4 टेलोफेज। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन सभी फेजेस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रोफेज की बात करते हैं। प्रोफेज में एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा बेसिक जो स्टार्टिंग का जो स्ट्रक्चर होता है सेल का, उसमें एक्चुअली होता क्या है, देयर इज ए सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। विद इन इट, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, यहां पे होता है न्यूक्लियोलस। देयर आर मैनी सेलुलर ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, मोर अदर्स। And in the polar side there is centriole which starts moving apart from each other, and in between the nucleus there is thin threads called as chromatin, called as chromatin. अब प्रोफेज में होता क्या है, टू मेन इवेंट्स होते हैं जो प्रोफेज में देखने को मिलते हैं। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। सबसे पहले तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। जो एस्टर है वो क्या होते हैं, बढ़ना शुरू होते हैं। अब एस्टर होते क्या है, यहां पे आपको पेयर दिख रहे होंगे सेंट्रियोल्स के। जो सेंट्रियोल्स जब क्या करते हैं, एक दूसरे से
दूर जाना शुरू करते हैं तो उनके बीच में एक फिलामेंट बनता है, माइक्रोट्यूबुलर फिलामेंट बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। तो एक तो प्रोफेज में ये होता है क्या कि फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। सेकंड वन इज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। सेकंड क्या चीज होती है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। जो हमारा ये क्रोमैटिन है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये क्या हैं, ये थिक बनना होते हैं, इनकी कंडेंसेशन शुरू होती है। और जो कंडेंसेशन है ये दो तरीके से की जाती है। वन इज डिहाइड्रेशन एंड सेकंड वन इज स्पाइरलाइजेशन। इसमें एक्चुअली होता क्या है, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, जिससे क्या होता है, ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं ये थिक और शॉर्ट होते हैं। एंड स्पाइरलाइजेशन में क्या होता है, ये क्या करते हैं, ई एक्सिस के अराउंड कॉइल शुरू कर देते हैं। एंड दिस स्ट्रक्चर इज एक्सप्लेनिंग अबाउट द अर्ली प्रोफेज। मतलब अर्ली प्रोफेज में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। आफ्टर दैट, जब ये अर्ली प्रोफेज का जो ये फेज है ये कंप्लीट हो जाता है, ओके, अब ये जो प्रोफेज है, प्रोफेज के बाद सेल मिड प्रोफेज में जाएगा और मिड प्रोफेज में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है हमारी, ये क्या करेगी, डिसअपीयर होना शुरू करेगी। जो हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपीयर होना शुरू करेगी। जो ये हमारे स्पिंडल फाइबर्स हैं ये और दूर जाना शुरू कर देंगे और दूर चले जाएंगे। दीज आर द एस्टर्स। न्यूक्लियोलस जो होगा वो क्या करेगा, श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। साइज जो होगा न्यूक्लियोलस का वो पहले बड़ा होगा, किसमें, अर्ली प्रोफेज में, और जब वो क्या करेगा मिड प्रोफेज में जाएगा उसका साइज क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेलुलर ऑर्गेनेलिज हैं, सेल ऑर्गेनेलिज हैं वो न्यूमरस हैं इन नंबर, बट जब आप मिड प्रोफेज में जाओगे उसमें क्या होगा, जो ये जो सेलुलर ऑर्गेनेलिज हैं ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी अपने नंबर में। एंड वन मोर थिंग, जो हमारे पास क्रोमैटिन है वो क्या करेगा, थिक हो जाएगा। वो अब क्या होगा, थ्रेड की तरह नहीं रहेगा, वो थोड़ा साइज में इंक्रीज करेगा। ये कब की बात आ गई, ये बात आ गई मिड प्रोफेज की। अब मिड प्रोफेज की मिड प्रोफेज के बाद बात करते हैं लेट प्रोफेज की। मिड प्रोफेज के बाद क्या हुआ, जो ये जो हमारा ये किस में जाएगा, लेट प्रोफेज में। और अब क्या होना शुरू हो गया है, मिड प्रोफेज में क्या हुआ था, मिड प्रोफेज में हुआ था कि जो हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी डिसअपीयर होना शुरू हो गई थी। सेलुलर ऑर्गेनेलिज जो थी वो भी डिसअपीयर होना शुरू हो गई थी। न्यूक्लियोलस का क्या हो गया था, साइज जो रिड्यूस होना शुरू हो गया था। और जब हम क्या करते हैं, लेट प्रोफेज में पहुंचते हैं, ऑल दोज इवेंट्स, ऑल दीज इवेंट्स गेट्स कंप्लीटेड। दैट जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाएगी। जो हमारी सेलुलर ऑर्गेनेलिज होंगी कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाएगी। और जो हमारे सेंट्रियोल्स होंगे वो क्या होगा, पोलर पोजीशन में आ जाएंगे। और जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करेंगे, सेंटर में अपने को अलाइन कर लेंगे, बट नॉट इन ए पैटर्न, इट align themselves randomly in the center, and these are the spindle fibers which arise from one centriole to other centrioles. This is the diagram of the late prophase. अब इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो डायरेक्टली, जैसे फॉर एग्जांपल जो एक्सट्रीम लेफ्ट का जो स्पिंडल फाइबर है, अगर हम इसको कंसीडर करें तो ये जो स्पिंडल फाइबर है ये डायरेक्टली एक सेंट्रियोल से सेकंड सेंट्रियोल तक जा रहा है। तो यहाँ पे इस स्पिंडल फाइबर को क्या कहेंगे हम, कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। और जो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से होते हुए दूसरे सेंट्रियोल में जा रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस। दे आर डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स।
ओके, दिस इज ऑल अबाउट द लेट प्रोफेज। और इस तरीके से हमने क्या किया, जो हमारा प्रोफेज था किसका, कैरियोकाइनेसिस का, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब प्रोफेज के बाद क्या होगा, जो सेकंड स्टेज है वो है मेटाफेज। अभी तक प्रोफेज में क्या क्या हो चुका है, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी है, सेल ऑर्गेनेलिज गायब हो चुकी है, न्यूक्लियस गायब हो चुका है। अब हमारे पास क्या है, स्पिंडल फाइबर्स हैं और उसमें क्या है, क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं। अब वो क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, वो क्रोमोसोम क्या करेंगे, अपने आप को इक्वेटर पे अलाइन कर देंगे। अपने आप को क्या करेंगे, इक्वेटर पे अलाइन कर देंगे। आई एम हियर ड्राइंग द 4 chromosomes which get aligned themselves along the equator. Okay, and these are the spindle fibers. तो मेटाफेज में क्या क्या हुआ, पहला ये हुआ कि जो हमारे पास क्रोमोसोम थे वो कहां पे आ गए, इक्वेटर पे आ गए। सेकेंड वन, डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं वो क्या करेंगी, जो यहाँ पे जो पोलर रीजन है उसमें, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया की मैं बात करता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, जो पोलर रीजन है वहां पे, ये हमारे क्या है, पोलर रीजन है, यहाँ पे अकोमोडेट होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज इन्होंने क्या करना है, इस सेल ने फर्दर जाके डिवाइड होना है, जिसकी वजह से क्या हो कि जब ये डिवाइड हो तो डॉटर सेल में इक्वल अमाउंट का जो सेल ऑर्गेनेलिज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो आए। इसके लिए इसको क्या होना पड़ेगा, इक्वली डिवाइड होना पड़ेगा, जिसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, अपने आप को अलाइन कर लेता है पोलर। ये बात की हमने किसकी, मेटाफेज की। अब मेटाफेज के बाद जो फेज आता है उसे कहते हैं एनाफेज। थर्ड फेज इज एनाफेज। और ये जो एनाफेज है इसको हम कैरेक्टराइज करते हैं वी शेप क्रोमोसोम से। अब क्या होता है इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, और इस सेल में क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे जो ये सेंट्रियोल्स हैं, जो हमारे पास जो क्रोमोसोम थे जो इक्वेटर पे अलाइन थे, वो क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, डिटैच हो जाएंगे और क्या करेंगे, टुवर्ड्स द पोल अलाइन हो जाएंगे, पोल्स की तरफ क्या करेंगे, पोल्स की तरफ अलाइन हो जाएंगे। ओके, इट इज क्लियर। अब ये बात की हमने किसकी, एनाफेज की। एनाफेज में ये होता है, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम फ्रॉम द सेंट्रोमियर्स एंड दे गेट अलाइन्ड टू द पोलर रीजन। ओके, एनाफेज में हुआ क्या कि जो ये क्रोमेटिड्स थे, क्रोमोसोम थे, ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए। और इसमें क्या होता है, ये एक इक्वल प्रोपोर्शन में सेपरेट होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ इक्वेशनल डिवीजन। और यहां पे ये क्या करते हैं, एक दूसरे दोनों पोल्स में क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सो दैट इट कैन ट्रांसफर टू द डॉटर सेल इन इक्वल। आफ्टर दैट, एनाफेज के बाद हम बात करते हैं टेलोफेज की। फोर्थ वन इज टेलोफेज। टेलोफेज क्या है, टेलोफेज कंप्लीटली अपोजिट है किससे, प्रोफेज से। अब प्रोफेज में क्या क्या हुआ था, प्लीज ट्राई टू रिकॉल। प्रोफेज में हुआ था, एक तो जो हमारे पास क्रोमैटिन जो फाइबर्स थे वो क्या हुआ था, डीकंडेंस हुए थे, जिसमें क्या हुआ था, जो डिहाइड्रेशन हुई थी एंड स्पेरलाइजेशन हुई थी। और प्रोफेज में एक चीज और हुई थी, जो हमारे पास न्यूक्लियोलस था वो डिसअपियर होना शुरू हो गया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो गई थी। टेलोफेज में क्या होगा, टोटली डिफरेंट, टोटली अपोजिट इवेंट्स देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स एक तो क्या होगा, डीकंडेंसेशन
ऑफ क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी क्या हो जाएगी, डीकंडेंसेशन हो जाएगी। सेकेंड वन इज न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स अपीयरिंग, जो न्यूक्लियोलस होगा वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, सेलुलर ऑर्गेनेलिज आल्सो स्टार्ट्स अपीयरिंग। ये जो इवेंट्स हैं ये किसमें होंगे, सभी इवेंट्स किसमें होंगे। वन मोर इवेंट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज वेरी मच ऑफ इंपॉर्टेंस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स अपीयरिंग, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो दिखना शुरू हो जाएगी। इसको अगर हम डायग्राम से देखें तो कैसे, ये था हमारा सेल, इसमें क्या था, यहां पे स्पिंडल फाइबर्स थे, यहां पे क्या था हमारे पास, यहां पे हमारे पास जो क्रोमोसोम क्या हुए थे, डिटैच हुए थे, किसमें, जो डिटैच हुए थे हमारे ड्यूरिंग एनाफेज, जो पोलर रीजन में आ गए थे, उनके अराउंड क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाएगी। एंड एक चीज मैंने और बताई आपको, जो ये जो क्रोमोसोम है ये डीकंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। दैट मीन्स ये किसमें, क्रोमेटिन में चेंज होना शुरू हो जाएंगे, न्यूक्लियोलस फिर से दिखना अपीयर हो जाएगा। सेम इज द केस विद दिस साइड, यहाँ भी सेम इवेंट्स जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ वही होंगे, और जो वेरियस सेलुलर ऑर्गेनेलिज हैं वो भी अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। ये सभी चीजें किसमें होगी, टेलोफेज में होगी। और टेलोफेज के साथ साथ हमने कंप्लीट हमारा जो कैरियोकाइनेसिस है, जो न्यूक्लियर डिवीजन है, अभी हमने बात की किसकी, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन की, कि न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होता है। तो जो कैरियोकाइनेसिस में जो न्यूक्लियस डिवीजन देखना था हमने, वो अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के बाद जो सेकंड टाइप हमने बताया था वो था साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस में क्या बताया था, साइटोकाइनेसिस में बताया था कि साइटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड टू डिफरेंट वेज से करता है। अगर हम दो डिफरेंट सेल लें, फॉर एग्जांपल इफ वी टेक अ प्लांट सेल एंड वी टेक अ एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में ये जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ए प्लांट सेल, दिस इज ए प्लांट सेल, इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज a न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दिस सेल इज रेडी टू डिवाइड। तो इसमें क्या होगा, बीच में एक सेल प्लेट की फॉर्मेशन होगी, दिस इज ए सेल प्लेट, और ये सेल प्लेट क्या करेगी, सेल प्लेट, और ये सेल प्लेट क्या करेगी, फ्रॉम द सेंटर इट एक्सटेंड्स टूवर्ड्स द पेरिफेरी, टूवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ द सेल वॉल की तरफ जाना शुरू करेगी। दैट मीन्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, दैट इज सेंट्रीफ्यूगली, सेंट्रीफ्यूगली ये क्या करेगी, एक्सटेंड करना शुरू करेगी। और जिससे क्या होगा, ये जो हमारे पास प्लांट सेल है, जो पेरेंट सेल है, ये क्या करेगा, टू डिफरेंट सेल में क्या करेगा, डिवाइड, टू डिफरेंट सेल में डिवाइड कर लेगा। It divides into two different cells, and same the nuclear membrane and various cellular organelles are present in these two daughter cells. And when we talk about the animal cell, अब animal cell में क्या होता है, animal जो डिवीजन होती है साइटोप्लाज्म की वो थोड़े डिफरेंट तरीके से होती है। जैसे कि देखो ये टिलो जो हम बात कर रहे हैं टिलोफेज की, उसमें क्या हो गया था, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो बन चुकी थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुकी थी। और अब क्या होगा, जो हमारे जो ये साइड्स हैं इसमें क्या होगी, कंस्ट्रक्शन आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, कंस्ट्रक्शन आएगी, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सेल फ्यूरो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप ऑफ द डिवीजन। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है, एंड एनिमल सेल में क्या होता है, सेल फ्यूरो की फॉर्मेशन होती है। और इसमें क्या होता है, एक और डिफरेंस बताता हूं आपको, इसमें जो हमारे पास जो
डिवीजन था वो शुरू हो रहा था फ्रॉम सेंटर टू द आउटसाइड, बट इन केस ऑफ एनिमल सेल फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड द सेंटर डिवीजन अकर्स। दैट मीन्स इट इज सेंट्रीपिटली। क्या करेगा, जो सेल डिवीजन है वो बाहर से अंदर की तरफ होगा, और ऐसे ही क्या करेगा, ये फर्दर 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें सब कुछ होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी होंगी, न्यूक्लियोलस भी होगा, एंड वेरियस अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर प्रेजेंट इन दोज 2 cells. In this way we complete mitosis. Thanks. Have a nice day.